فتح بیت المقدس۔ حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان بقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو عرض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے الیفیہ اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ کا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا، جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرما دی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات مرکہ حتین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھیں۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ مقام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے، جو حسام الدین لولو الحاجب چمکدار ابرو والا کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرات و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کو دار جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بجر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے افرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اس نے بیت المقدس میں مشہور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خونریزی اور کشت و خون کے جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا اطاعت قبول کر لیں، لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں۔ اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مجانب کو نصب کر لیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ امام ابن الاسیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی ایسے ہی کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے مرنے موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی بھی روکا جائے تو روکے نہ جا سکیں۔ یکبارگی زوردار حملہ۔ پھر انہی جہادی و قتالی ایام میں سے ایک امیر عزال الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا تو اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یکبارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھر گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فیصل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانب بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھیں اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلادھار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یعنی یہ ان کے لیے ایک اور فائل تھا، جان بخشی کی درخواستیں۔
तो जब इन फरंगियों के दिफा करने वालों ने मुसलमानों के हमले की शिद्दत, उनके इरादों की सदाकत और तलक़दस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब मिराज की याज़ क़यामगाह को छुड़वाने की खातिर मौत को सीने लगाने के जज्बात को देखा तो इन्हें अपनी हलाकत व बर्बादी का यकीन हो गया और सिवाय अमान तलब करने के कोई चारा न देखा तो वो मुज़ाकरात करने के लिए माइल हुए। दुनिया में काफिर कौमों से मुज़ाकरात का तरीका भी यही है कि जिहाद जारी रखा जाए और अल्लाह के दुश्मनों का घेरा तंग किया जाए कि वो मुज़ाकरात की अपील करें। ये ना हो कि मुसलमान कमजोरी दिखाते हुए खुद मुज़ाकरात की दावत दें, और वो भी मुगलूबाना जमहूरी अंदाज में कि जिस तरह आजकल हो रहा है। पहले मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, और फिर मुज़ाकरात की साजिश करके उनको नाम निहाद मुआहदों के जाल में फानस कर बेबस कर दिया जाता है। उसी तरह मगलूब ईसाइयों के मुअज़्ज़िज़ीन जुमा होकर सुल्तान के पास अमान तलब करने की गरज से आए और सलाहुद्दीन ऐबी रहमतुल्लाह से इस शर्त पर अमान के तलबगार हुए कि बैत अल मक़दस इसके हवाले किए देते हैं। तो आखिर सुल्तान ने उनकी तलब को मान लिया और बैत अल मक़दस लेकर इन्हें अमान नामा देने पर राजी हो गया। मुआफियां, जान बख्शियां और जज्बा की थैलियां। सुल्तान ने इस शर्त पर अमान दे दी कि ईसाई बाशिंदों में से तमाम मर्द फीकिस 10 दीनार और औरतें फीकिस 5 दीनार और बच्चे फीकिस 2 दीनार जजिया दे सकें, अपना जरूरी असबाब और जान लेकर चले जाएं, और जो इस फिदिया यानी जर तलाफी को अदा न कर सके वो बतौर गुलामों के मुसलमानों के कब्जे में रहेंगे। ईसाई इस शर्त पर रजामंद हो गए और बिलियान बिन बारजान और बतरीक आजम और दादिया टम्पलरस और इस्तबार ये हॉस्पिटलरस के रईस इस रकम के अदा करने के जामिन हुए। बिलियान ने 30,000 दीनार मफलस लोगों के वास्ते अदा किए और इस जजिया के अदा करने वाले तमाम लोग उनके साथ शहर से निकल गए। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की बगैर जजिया अदा करने के हर एक मुमकिन जरिया से यानी दीवारों से लटक कर और दूसरे तरीकों से निकल गई, और बाकियों की निस्बत भी जो जजिया अदा नहीं कर सकते थे। सुल्तान ने ऐसी फयाजी रखी जिसकी नजीर दुनिया में बहुत कम मिलेगी। मुल्क आदिल की दरख्वास्त पर और अपने बेटों और अजीजों की दरख्वास्तों पर बेशुमार लोग जो जजिया अदा नहीं कर सकते थे आजाद कर दिए। फिर बिलियान और बतरीक आजम की दरख्वास्त पर भी एक बड़ी जमात को आजादी दी और सबके बाद एक बड़ी जमात अपने नाम पर छोड़ दी। ईसाई मलका को मां अपनी तमाम दौलत और बेशुमार माल व सबाब और जर व जवाहिर के अपने मुलाजिमों और मुतलकीन समेत अपने खाविंदों के पास जाने की इजाजत दी, और किसी शख्स से ख्वाह वो कितनी ही दौलत और माल लेकर निकला सिवाय जजिया की मुअय्यन रकम के कुछ ज़ायद तलब या वसूल करने की किसी मुसलमान ने परवाह नहीं की। जब ईसाइयों के घोड़े मुसलमानों के खून में घुटनों तक चलते रहे, सुल्तान का ये सलूक जो उसने ईसाइयों के साथ किया इस्लामी फयाजी और तहम्मुल और एहसान और सलूक की एक ऐसी मिसाल है जिस पर खुनखार और दरिंदा खुसलत ईसाई दुनिया को इस्लाम और मुसलमानों पर खूनरेजी के इल्जाम लगाने और इस्लाम को खूनरेजी का मुतरादिफ करार देने के बजाय इसके रूबरू शर्मंदा होना चाहिए। यही शाम की सरजमीन और वो 1 सदी से ज्यादा अरसा के वाकयात जो दोनों कौमों की दुनिया ने देखे इस अमर का फैसला करने के लिए काफी हैं। ईसाइयों ने फतह बैत अल मक़दस के वक्त जिस खूनरेजी को रवा रखा और जो जुल्म व सितम बेगुनाह मुसलमानों पर किया और जो बेनतहा और बेहिसाब खून मर्द, औरतों और बच्चों का गिराया वो तारीख के सफ़ों से पूंछ नहीं डाला गया। गाडफ्री और रेमनड वगैरह फातिहीन बैत अल मक़दस ने जो खत उस वक्त पोप को फतह बैत अल मक़दस की निस्बत लिखा था, इसमें फतह की खबर लिखने के बाद लिखा कि अगर तुम मालूम करना चाहते हो कि हमने उन दुश्मनों के साथ जिनको हमने शहर में पाया क्या किया, तो तुमको बताया जाता है कि रवाक सलीहान और गिरजा में हमारे घोड़े तक मुसलमानों के नापाक खून चलते रहे। सुलीबियों को बैत अल मक़दस से निकालने के जिहादी मनाजिर। अमान नामा पर दस्तखत हो जाने के बाद तमाम जंग करने वाले लोगों को जो यरूशलेम में थे सूर या तराबलस चले जाने की इजाजत मिल गई। फातेह ने बाशिंदों को उनकी जानिब बख्शे और उनको चंद दिनारों पर मुश्तमिल हकीर सी रकम के बदले अपनी आजादी खरीदने की इजाजत दे दी। तमाम ईसाइयों को बास्तस्नाए यूनानियों और शामी ईसाइयों के 4 दिन तक यरूशलेम से चले जाने का हुक्म दिया गया। शामी और यूनानी ईसाइयों के साथ कतई रियायत की गई और उनको हर एक आजादी दी गई। ये सुल्तान का एक और एहसान था। जर मखलसी जजिया की शरह 10 दिनार हर एक मर्द के वास्ते, 5 औरत और 2 दीनार बच्चे के लिए मुकर्रर किए गए, और जो अपनी आजादी खरीद न सके गुलाम रहने के पाबंद थे।
उन शराइत पर ईसाइयों ने पहले बहुत खुशी मनाई, लेकिन जब वो तयशुदा दिन करीब आ पहुंचा जिस पर इन्होंने यरूशलेम से रुखसत होना था, बैत अल मक़दस को छोड़ने के सख्त रंज और गम के सिवा उनको कुछ नहीं सोचता था। इन्होंने मसीह की कब्र को अपने आंसुओं से तर कर दिया और मुतअस्सिफ थे कि वो क्यों उसकी हिफाजत करने में न मर गए। इन्होंने कलोरी और गिरजाओं को, जिनको वो फिर कभी नहीं देखने वाले थे, रोते और चलाते हुए जाकर देखा। बाजुओं में एक दूसरे को गले लगाया और अपने मौलिक इख्तिलाफात पर आंसू बहाए और गम किया। आखिर वो मौलिक दिन आ गया जब ईसाइयों को यरूशलेम छोड़ना था। दाऊद के दरवाजे के सिवाय जिसमें लोगों को बाहर गुजरना था, सब दरवाजे बंद कर दिए गए। सलाउद्दीन एक तख्त पर बैठा हवा ईसाइयों को बाहर जाते देख रहा था। सबसे पहले बतरीक बमियत जमात पादरियान आया, जिन्होंने मुकद्दस ज़रूफ या तस्वीरें वगैरह मसीह की मुकद्दस कब्र के घर जाके ज़ेवराती असबाब ज़ेबाइश और वो खजाने उठाए हुए थे जिनकी निस्बत एक अरब मौर्रिख लिखता है कि उनकी कीमत व मालियत इतनी ज्यादा थी। अल्लाह ताला ही उनकी कीमत को जानता था। उनके बाद यरूशलेम की मलका नवाबों, बैरनस और सवारों, नाइट्स के हमराह आई। मलका के हमराह एक बहुत बड़ी तादाद औरतों की थी जो गोदियों में अपने बच्चों को उठाए हुए थीं और बहुत दर्दनाक चीखें मार रही थीं। इनमें से बहुत सी सलाहुद्दीन के तख्त के करीब गईं और इससे इल्तिजा की, ए सुल्तान, तुम अपने पाँव में उन जंगाओं की औरतें, लड़कियां और बच्चे देखते हो जिनको तुमने कैद में रोक लिया है। हम हमेशा के लिए अपने मुल्क को, जिसको इन्होंने बहादुरी से बचाया है, छोड़ती हैं। वो हमारी जिंदगियों का सहारा थे। उनको खो देने में हम अपनी आखिरी उम्मीदें खो चुकी हैं। यानी अगर हमारे मर्द आपके कैद में चले गए और हमसे बिछड़ गए तो हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद और सहारा भी खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको हमें दे दो, यानी आजाद कर दो, तो हमारी जलावतनी की मुसीबतें कम हो जाएंगी और हम जमीन पर बेयारो मददगार न होंगे। सुल्तान उनकी इस दरख्वास्त से मुतासिर हुआ और इस कदर दिल शिकस्ता खानदानों की मुसीबतों को दूर कर देने का वादा किया। इसने बच्चे उनकी मां के पास पहुंचा दिए और खावनद आजाद करके उनकी बीवियों के पास भेज दिए जो कि इनके कैदियों में गिरफ्तार थे, जिनकी जर मखलसी, फिदिया या जजिया अदा नहीं की गई थी। बहुत से ईसाइयों ने अपने निहायत कीमती माल व सबाब छोड़ दिए थे और बाज के कंधों पर ज़ईफ़ उम्र वालिदैन थे और दूसरों ने कमजोर या बीमार दोस्तों को उठा लिया था। इस नज़ारा को देखकर सुल्तान का दिल भर आया, लिहाजा उसने अपने दुश्मनों के औसाफ की तारीफ करके उनको कीमती तोहफे और इनामात दिए। इसने तमाम मुसीबत ज़दा पर रहम किया और हॉस्पिटलर फिरका इस्तबारिया के लोगों को इजाजत दी कि शहर में रहकर ईसाई हाजीवा की खबर गिरी और खिदमत करें और ऐसे लोगों की मदद करें जो सख्त बीमारी के बायस यरूशलेम से जा नहीं सकते हैं। कैदियों की रिहाई और रहमत लाना सुलूक। जब मुसलमानों ने शहर का मुहासरा शुरू किया उस वक्त बैत अल मक़दस में 1 लाख से ज्यादा ईसाई थे। उनके बहुत बड़े हिस्से में खुद अपनी आज़ादी खरीदने की काबिलियत मौजूद थी और बलीटू, जिसके पास शहर की हिफाजत के वास्ते खजाना मौजूद था, इसके बाशिंदों के एक हिस्सा की आज़ादी हासिल करने में सिर्फ किया। मुल्कादिल सुल्तान के भाई ने 2000 कैदियों को फिदिया, ज़र मखलसी या जजिया खुद अपने पास से अदा किया। सलाउद्दीन ने उसकी मिसाल की पैरवी की और गरीबों और यतीमों की एक बहुत बड़ी तादाद को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। वहाँ कैद में सिर्फ 14,000 के करीब सलीब के पुजारी रह गए, जिसमें 4 या 5,000 कमसिन बचे थे जो अपनी मसाइब से बेखबर थे, लेकिन जिनकी किस्मत पर ईसाई समर के यकीन से और भी ज्यादा नाराज थे कि ये जंग के बेगुनाह मजलूम माज़अल्लाह महद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुत परस्ती में परवरिश पाएंगे। इन हालात के कलम बंद करने के बाद फ्रांसीसी मौर्रिख लिखता है कि बहुत से जदीद मौर्रिखों या मुसन्निफों ने सलाहुद्दीन के इस फियाजाना सलूक को उन नुसरत अंगेज वाक़यात के साथ जो पहले क्रूसेडरों से यरूशलेम में दाखिल होने के वक्त पैदा किए गए थे, मुकाबला किया है। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि ईसाइयों ने शहर को हवाला कर देने की दरख्वास्त की थी और मुसलमान मजनूनाना हट के साथ अरसा दराज तक मशहूर रहे थे और गॉडफ्री के हमराहियों ने जो एक नामालूम सरजमीन में मुआनद कौमों के दरमियान थे बेशुमार खतरात बर्दाश्त करके और तमाम कस्म की मुसीबतें उठाकर शहर को मुकाबला से फतह किया था।
लेकिन हमारी अल्तमास ये है कि इस बात के कहने से हम ईसाइयों को हक बजानिब नहीं बयान करना चाहेंगे और न उन तारीफों को ज़ईफ करना चाहते हैं जो सलाहुद्दीन की तारीफ के जिम्मा हैं और जो उसने उन लोगों से भी हासिल की हैं जिनको उसने फतह किया था। बावजूद इस तंगदली के जो फ्रांसीसी मौर्रिख की बजा तारीफ में मुज़ाका करने से जाहिर करता है, आखिरकार वो उनके तस्लीम करने में मजबूर हो जाता है। एक जदीद जमाना का अंग्रेजी मौर्रिख अपनी मुख्तसर तारीख में इससे ज्यादा इंसाफ से सुल्तान के उन निशानात को तस्लीम करता है। वो लिखता है कि गरीब ईसाइयों की आज़ादी खरीदने की हर एक कोशिश करने और हर एक बाजार में टैक्स लगाने और बादशाह इंग्लिस्तान का खजाना जो अस्पताल में उसी मुश्तरक फंड में दाखिल कर देने के बाद भी एक बड़ी तादाद उन लोगों की रह गई जो कोई फिदिया जजिया अदा नहीं कर सकता, जिनकी किस्मत में इस सूरत में दायमी गुलामी या मौत थी। उनकी दर्दनाक हालत पर रहम करके सलाहुद्दीन का बहादुर और फयाज दिल भाई आदिल सुल्तान के पास गया और शहर के फतह करने में अपनी खिदमत याद दिलाकर अर्ज की कि इसके हिस्सा गनीमत में 1000 गुलाम इसको दे दिया जाए। सलाहुद्दीन ने दरियाफ्त किया, वो किस गर्ज के लिए इन्हें तलब करता है? आदिल ने जवाब दिया, जो सुलूक वो चाहेगा उनके साथ करेगा। इसके बाद बतरीक ने जाकर ऐसी ही दरखास्त की और 700 आदमी पाए और इसके बाद बिलियन को 500 और मिले। तब सलाहुद्दीन ने कहा, मेरे भाई ने अपनी खैरात की है, बतरीक और बिलियन ने अपनी अपनी की है, अब मैं अपनी भी करूंगा और इस पर हुक्म दिया कि तमाम मुअम्मर आदमी जो शहर में थे आजाद कर दिए जाएं। ये वो खैरात थी जो सलाहुद्दीन ने बेतादाद गरीब आदमियों को छोड़ देने से की। मौर्रिख लेन पोल लिखता है, हम जब सुल्तान के उन निशानात पर गौर करते हैं तो वो वशियाना हरकतें याद आती हैं जो सुलीबियों ने फतह बैत अल मक़दस के मौका पर की थीं। जब गार्ड फरे और तनकीर डाल बैत अल मक़दस के बाजार से इस हाल में गुजर रहे थे कि वो मुसलमानों की लाशों से भरा हुआ लिफ्ट था और जब बल्ब जख्मी वहां तड़प रहे थे, जब सलीबी बेगुनाह और लाचार मुसलमानों को सख्त अज़ियतें देकर कत्ल कर रहे थे, जिंदा आदमियों को जला रहे थे और अल-अक़दस की छत पर पनाह लेने वाले मुसलमानों को तीरों से छलनी करके नीचे गिरा रहे थे। बेरहम ईसाइयों की खुशकिस्मती थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों उन पर रहम व करम हो रहा था।